Assalamualaikum and a very good morning to all my students of class 2. I hope you all are very fit and fine. Student, today we are going to see the recapitulation of chapter number 5, that is I Celebrate. So student, in this chapter we are going to learn about the different types of the festivals. There are many festivals in India, as India is a full of festival country. So see this starting point. We decorate our house with this object. When we decorate our house with the lamp and diya, in which festival? In Diwali. In the Diwali we decorate our house with the diya and this lamp. Now can you see the second picture? The second picture is of a Christmas tree. So when we decorate the Christmas tree, we decorate the Christmas tree in the Christmas function. Now see the next. Now see, festivals are special days which we celebrate with our family. We celebrate festival with our family members, right? And friends, right student? We celebrate all our festival with our family members and friends. On a festival, we wear new clothes. फेस्टिवल के दिन हम कौन से कपड़े पहनते हैं? न्यू क्लोथ्स. ईट डिलीशियस फूड, और हम बहुत अच्छा खाना बनाकर खाते हैं. एंड एक्सचेंज गिफ्ट विथ आवर लव वंस, और हम एक दूसरे को तोहफा भी देते हैं. हम ईद पर एक दूसरे को ईदी देते हैं ना, राइट? हम ईद पर अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, राइट? वी ऑल्सो क्लीन एंड डेकोरेट आवर हाउस. हम अपनी घर को साफ भी करते हैं और डेकोरेट भी करते हैं. कब? ऑन द फेस्टिवल डे. नाउ सी द नेक्स्ट. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. क्या है बेटा? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. रिलीजन फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल. कितने टाइप्स के फेस्टिवल है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. द फर्स्ट फेस्टिवल इज रिलीजन फेस्टिवल. व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन फेस्टिवल? रिलीजन फेस्टिवल मतलब वो फेस्टिवल जो अलग अलग रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कितने रिलीजन्स है? देर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, दिस ऑल आर द caste, different caste, and in all that caste they are having a different festival. We Muslim, we celebrate Ramzan, Eid and Bakri Eid and many others festival. In Hindu they are celebrate Diwali, Holi, right, Janmashtami, many other festival. Christians celebrate the festival of Christmas. They celebrate the festival of Christmas. What do you mean by now harvest festival? Harvest festival means those festival when we grow the new crops and when we cut that crops for the first time of the season. At that time we celebrate the festival of harvest. And national festival. What do you mean by, what are the national festival? National festival means the festival which the whole country celebrate in the same day. For example, 15 August, Republic Day, this all are our national festival. Okay student? The first festival which we are going to see is religion festival. We are going to see the religion festival. In religion festival, first we are going to learn about which festival? Diwali. Now, I hope you all know what is the festival of Diwali. Can you see the picture of Diwali over here? There is one auntie who is decorating the Holi, right? Rangoli. वो रंगोली बनाती है. There is a one girl standing and looking that how she is preparing the rangoli. Now can you see this man? He is standing here. Can you see that he is decorating the diya, right? वो दिए जला रहे हैं, right? तो Diwali is the festival of which festival? It is the festival of a light. क्योंकि दिवाली के फेस्टिवल में सभी लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं विद द लाइट, विद द दिया, राइट? एंड दे ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउस विद द रंगोली. नाउ सी व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली. दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली का दूसरा नाम कौन सा है? विच फेस्टिवल? लाइट फेस्टिवल. पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद दिया, कैंडल एंड रंगोली. सभी लोग अपने घर को किससे डेकोरेट करते हैं?
They decorate their house with diya. Can you see the men decorating the house with the diya? Candles. You all know what is the candle, right student? And rangoli. रंगोली यानी अलग अलग फ्लावर्स प्रिंट है या किसी भी प्रिंट से वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इज नोन एज रंगोली. दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट विथ ईच अदर. अब दिवाली के दिन वो लोग क्या पहनते हैं? न्यू क्लोथ्स. दे वेयर अ न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट. एक्सचेंज गिफ्ट मतलब वो एक दूसरे को तोहफा देते हैं एक दूसरे के घर जाकर to each other. So this is the festival of Diwali. Which is the festival of Diwali? Yes. Now come on, answer me again. What is the second name of the Diwali? Diwali को दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट. कौन से नाम से जाना जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट. पीपल डेकोरेट देयर हाउस. पीपल कौन सी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करते हैं? दे डेकोरेट देयर हाउस विद द दिया, कैंडल एंड रंगोली. 3 थिंग्स. कौन कौन सा? बोलो वापस. दिया, कैंडल एंड रंगोली. सम ऑफ द पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद द फुल ऑफ लाइट. सारी अलग अलग स्पार्कल लाइट से भी अपने घर को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं. नाउ स्टूडेंट टेल मी what the people wear on that day. People wear a new clothes on that day. दिवाली के दिन लोग क्या पहनते हैं? न्यू क्लोथ्स. And what they exchange to each other? They exchange gift with each other. और एक दूसरे को अच्छा अच्छा गिफ्ट देते हैं. Now student, we are going to learn about the next festival, that is the Holi festival. Which festival? Holi. Now student, can you see this 2 children are playing the Holi? एक दूसरे को कलर से खेल रहे हैं. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर. होली इज द फेस्टिवल ऑफ द कलर. होली के फेस्टिवल में लोग किससे खेलते हैं? कलर से खेलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से. पीपल सिंग, डांस एंड प्ले विद गुलाल. लोग क्या करते हैं? पीपल क्या करते हैं होली के फेस्टिवल पर? दे सिंग, वो गाना गाते हैं. दे डांस, वो लोग डांस करते हैं. एंड प्ले विद गुलाल, और गुलाल से खेलते हैं. कलर को होली के फेस्टिवल में कौन से नाम से जाना जाता है? गुलाल. अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड भुजिया. और होली के दिन पर एक स्पेशल स्वीट बनती है. उस स्वीट का क्या नाम है? भुजिया. क्या नाम है? भुजिया. इज प्रिपेयर्ड ऑन होली. होली के दिन पर ये भुजिया सभी के घर में बनाई जाती है. ओके स्टूडेंट, नाउ टेल मी, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर. होली किसका फेस्टिवल है? कलर का. क्यों? क्योंकि सभी लोग होली के दिन किससे खेलते हैं? कलर से. यानी एक दूसरे पर क्या फेंकते हैं? कलर फेंकते हैं. अब होली के दिन लोग क्या करते हैं? कैसे एंजॉय करते? दे एंजॉय बाय सिंगिंग द सॉन्ग, डांस करके, एंड प्लेइंग विद द गुलाल, और कलर से यानी गुलाल को एक दूसरे पर डालकर वो लोग एंजॉय करते हैं. स्टूडेंट, एक स्पेशल स्वीट भी बनती है होली के दिन सभी के घर में. वो उस चीज़ का नाम क्या है? उस स्वीट का क्या नाम है? भुजिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वीट? भुजिया. नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट. So student, now we are going to see the festival of Eid. As everyone know what is the festival of Eid, right? Can you see the 2 people? आप यहाँ पर 2 people को देख सकते हो. How they are hugging each other. एक दूसरे को कैसे गले लगाते हैं. आप सबको पता है कि हम ईद पर एक दूसरे को गले लगाकर क्या बोलते हैं? ईद मुबारक. क्या बोलते हैं? ईद मुबारक. Now see. Eid is celebrated after a month of fasting called Ramadan. हम रमज़ान के जो 1 महीना जो हम फास्ट रखते हैं, 30 डेज़ जो हम रोज़े रखते हैं, उस 30 रोज़े के बाद हमारा एक ऐसा दिन आता है जब हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रमज़ान ईद. और वो सबसे खूबसूरत ईद है. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स. हम सब उस दिन क्या पहनते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं, हाथ में मेहंदी लगाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, राइट. और जो पापा होते हैं, भाई लोग होते हैं, वो कफनी लहंगा पहनते हैं, है ना. ऑन दिस डे एंड ऑफर प्रेयर एट मॉक्स. और पापा है, भाई हैं, आपके चाचा चाचू है, जो भी हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? वो लोग मस्जिद में जाते हैं. क्या करने के लिए जाते हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए, है ना. और हम सब घर पे नमाज़ पढ़ते हैं उस दिन, राइट स्टूडेंट. हमें ये करते हैं ना ईद के दिन. नाउ सी द नेक्स्ट.
We wish each other Eid Mubarak. A special delicious called सेवैया is prepared and shared with friends and family. और हम ईद के दिन क्या बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं ना, दूध का, सेव का, है ना, ड्राई फ्रूट्स डालकर, यानी वो स्पेशल हमारी डिश है। जिस ईद होती है उस दिन सेवैया ज़रूर सभी मुस्लिम्स के घर पर बनती है। और हम एक दूसरे को क्या करते हैं, गले लगाकर ईद मुबारक बोलते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं, पापा हैं या भैया है, जो भी आदमी लोग हैं वो सब कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे ही वो लोग नमाज़ पढ़ के घर पर आते हैं, सभी लोग एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और क्या खाते हैं, सेवैया खाते हैं और सभी को क्या बोला जाता है, ईद मुबारक। सो दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। Eid is the festival of Muslim. Now see the next. Guru Purab. Guru Nanak Dev was the first Sikh Guru. गुरु नानक जो थे वो कौन थे, गुरु सिख के पहले गुरु थे, यानी उनके फर्स्ट गॉड थे। Now see, Guru Purab is celebrated on mark his birthday anniversary. People wear new clothes and offer prayers at the Gurudwara. Fruit, sweet and bread are distributed on this day. यानी उनकी बर्थडे वो लोग इसी डे को सेलिब्रेट करते हैं, किसकी, गुरु नानक की। वो लोग गुरुद्वारा जाकर उनकी प्रेयर्स करते हैं, अरदास करते हैं। अरदास मतलब वो अपने खुदा को प्रेयर करते हैं, अपने खुदा को दुआ करते हैं। और उसी दिन वो लोग सभी में क्या चीज़ को बांटते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट, स्वीट, ब्रेड एंड everything they distribute on this day. Okay, and even they also wear a new clothes. गुरुद्वारा के दिन भी वो लोग नए कपड़े पहनते हैं। Now see the next. Christmas. Christmas is celebrated on 25th December every year to make the birth of Jesus Christ. क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और किसकी खुशी में किया जाता है, उस दिन किसका बर्थडे होता है, उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद लाइट एंड क्रिसमस ट्री। और जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं वो सभी लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री को लाते हैं, उस ट्री को डेकोरेट करते हैं लाइट से, स्टार से, चॉकलेट से, बहुत सारी चीज़ों से, और क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस, राइट। और वो लोग अपने घर को लाइटिंग से भी डेकोरेट करते हैं। वो लोग भी इस दिन को नए कपड़े पहनते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ क्रिसमस। और आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हो कि क्रिसमस ट्री कौन से कलर का होता है, दैट इज़ द कलर ऑफ अ ग्रीन। और उसके ऊपर लाइटिंग्स लगाया जाता है, स्टार्स लगाया जाता है। और क्रिसमस पर सबसे मेन कोई आता है, वो कौन है, सेंटा क्लॉज। नाउ सी द नेक्स्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हम हार्वेस्ट के फेस्टिवल के बारे में पढ़ें। अभी हमने जितने फेस्टिवल पढ़े वो कौन से फेस्टिवल, वी हैव लर्न अबाउट द रिलीजन फेस्टिवल, यानी सारे रिलीजन्स के फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो हार्वेस्टिंग के बारे में फेस्टिवल पढ़ेंगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेट the time of harvesting of a crops are called harvest festival। यानी क्रॉप की जो कटाई होती है, हम खेत में जो भी चीज़ को ग्रो करते हैं और जिस वक्त उसकी कटाई होती है, पहली सीज़न की जो कटाई होती है उस वक्त ये हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। ये भी स्टेट वाइज है, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यही चीज़ हम 1 by 1 इस चैप्टर यानी ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोंगल। पोंगल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब देखते हैं कि ये पोंगल का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है। सी, पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु में। आफ्टर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, क्रॉप्स यानी जो भी वो लोग ने ग्रो किया है अपनी खेतों में उसको काट लेते हैं पहली बार, उसके बाद ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद रंगोली।
वहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपने घर को किससे डेकोरेट करते हैं? रंगोली। मैंने अभी होली में आपको बताया, रंगोली यानी दिवाली में भी बताया, रंगोली यानी लोग अपने घर के बाहर अलग अलग कलर से डिज़ाइन करते हैं। उस डिज़ाइन को क्या बोला जाता है? रंगोली। क्या बोला जाता है? रंगोली। नाउ सी द नेक्स्ट। अ स्पेशल डिलिशियस कॉल Chakra Pongal is prepared with rice, milk, jaggery and coconut. अब वहाँ पर एक डिश बनती है खाने के लिए जो सभी के घर में बनती है, उसको चकरा बोला जाता है। पोंगल वो किस चीज़ से बनती है? राइस को लिया जाता है, मिल्क, जैगरी यानी गुड़ आता है ना ब्राउन कलर का, उसको जैगरी बोलते हैं, और कोकोनट यानी ये 4 चीज़ों को मिलाकर वो स्पेशल जो डिश है उनकी कचरा करके जो डिश है वो डिश उनकी बनाई जाती है। कहाँ पर? पोंगल। सो स्टूडेंट मुझे आंसर दो, पोंगल कहाँ कौन से स्टेट पर सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु। कब होता है? जब क्रॉप हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को ख़त्म करता है तब ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। नाउ सी ओनम। ओनम भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है। ओनम इज़ सेलिब्रेट इन केरला। हार्वेस्ट का ये जो फेस्टिवल है ओनम का, वो कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरला। रंगोली डेकोरेशन कॉल, रंगोली का जो डेकोरेशन है उसको क्या बोला जाता है? POOKALAMS, पूकलम आर मेड, यानी वो रंगोली वो घर के बाहर वो लोग बनाते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द फोक डांस एंड सॉन्ग, यानी केरला का जो फोक डांस है और जो उनका स्पेशल सॉन्ग है, उस दिन पर वो सॉन्ग को बजाया जाता है और उस सॉन्ग पर सभी लोग अपना फोक डांस करते हैं, यानी जो उनका ट्रेडिशनल डांस होता है केरला का, वो पीपल्स उस दिन वो डांस को करते हैं। नाउ बैसाखी। अब बैसाखी कौन सा फेस्टिवल है? पंजाबियों का फेस्टिवल है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बैसाखी। सी, बैसाखी इज़ अ पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ये किसका फेस्टिवल है? कौन से स्टेट? पंजाब का फेस्टिवल है। पीपल परफॉर्म द फेमस भांगड़ा एंड गिद्दा। कलरफुल फेयर्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनी प्लेसेस। अब वो लोग अपना ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है पंजाबियों का, वो लोग वो ड्रेस को पहनते हैं, भांगड़ा करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं। कलरफुल फेयर्स यानी मेले लगते हैं जो बहुत ही कलरफुल मेले होते हैं, उनके हर जगह पर अलग अलग कलर की चीज़ें लगाई जाती हैं और वो लोग बहुत सारे लोग मिलकर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यानी बैसाखी किसका फेस्टिवल है? कहाँ का फेस्टिवल है? ये पंजाब का फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? पंजाब का। ओनम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। राइट, ओनम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? तमिलनाडु में। और ये जितने भी मैंने आपको बोले वो कौन से फेस्टिवल हैं? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी क्रॉप्स काटने के बाद जो खुशी से फेस्टिवल बनाया जाता है वो फेस्टिवल है। नाउ सी, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेशनल फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेट बाय द एंटायर कंट्री आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। अभी तक हमने जो फेस्टिवल्स पढ़े वो पर्टिकुलर रिलीजन पर थे और पर्टिकुलर स्टेट के बारे में थे, यानी अलग अलग स्टेट में ऐसे फेस्टिवल होते थे और अलग अलग कास्ट में ये लोग ऐसे फेस्टिवल को बनाते थे। नाउ नेशनल फेस्टिवल यानी वो फेस्टिवल जो पूरा कंट्री एक साथ सेलिब्रेट करता है। इंडिपेंडेंस डे। We became free from the British rule on 15 August 1947. We celebrate this day as an Independence Day every year. हम ब्रिटिशों के रूल में 200 ईयर्स से रूल्स में थे, हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से। कौन से दिन हमें आज़ादी मिली? 15 अगस्त। कौन से ईयर में मिली? 1947। तब से लेकर आज तक हम ये डे को कौन से डे से सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त। हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट। The Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort
on this day and gave a speech. हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर है राइट वो कहाँ जाते हैं, रेड फोर्ट पे यानी लाल किले पर जाकर दिल्ली में हर साल इस दिन पर क्या होस्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग का लहराते हैं और लहराने के बाद वो स्पीच देते हैं. अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख कर भेजना है कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंटली, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है. ओके, आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर. Now see the next. Republic Day. We celebrate Republic Day every year on 26 January. This is a grand and colorful paradise at the India Gate. दिल्ली में जो इंडिया गेट है पार्लियामेंट के पास, वहाँ पर रिपब्लिक डे को बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है. जितने भी आर्मीज़ के ड्रेस कोड है या जितने भी नेवीज़ है, जितने भी कल्चर है इंडिया में, जितने स्टेट हैं, वो सभी स्टेट के लोग 26 जनवरी के दिन गेट ऑफ इंडिया के पास अपनी कंट्री, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं राइट और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, क्या आंसर आपको मुझे देना है और आपका क्वेश्चन ये है, सी हियर. द सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे एंड व्हाई, फाइंड आउट. सो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन है, उसका नाम. और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि हम टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं, एंड वाई, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किसके नाम पर हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द रिकैपिटेशन ऑफ चैप्टर नंबर 5. आई सेलिब्रेट अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. हमने 3 टाइप के फेस्टिवल पढ़े. कौन कौन से फेस्टिवल्स पढ़े हमने? Come on, religion, national and harvesting. Okay, till then stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.